गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पास कोर्स मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर थर्ड पेपर में न्यूमेरिकल एनालिसिस के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोगों ने अब तक इस वीडियोस को देखा होगा। मैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ कि प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट y dash equals to 1 upon h, y dash equals to 1 upon h delta of y minus 1 upon 24 delta cube y plus 3 upon 360 delta 5y and so on. And second part, b part, is y double dash equal to 1 upon h square delta square y minus 1 upon 12 delta 4y plus 1 upon 90 delta 6y and so on. These are the identities, very important identity in the examination point of view. Y dash means differentiation of y, or this delta is the central difference operator. So we use this operator when differentiation delta equals to, we know that delta equals to e raised to half minus e raised to minus half. This is the central difference operator. Now we use this by definition. So prove. Like we know that delta equals to e raised to half minus e raised to minus half. This is the central difference operator. We know that this is equals to this, and e equals to, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम जानते हैं e equals to e raised to hd, where d equals to differentiation. where e equals to e raised to hd, where d equals to differentiation, ये अपन जानते हैं। Now हम जानते हैं, तो इसको हमने चेंज किया, e raised to hd by 2 minus e raised to minus hd by 2 delta equals to e raised to hd by 2 minus e raised to minus hd by 2. Then using the, हम साइन हाइपरबोलिक की फॉर्म में जानते हैं, दिस इज योर साइन हाइपरबोलिक एच डी बाई टू, साइन हाइपरबोलिक ट्वाइस ऑफ साइन हाइपरबोलिक डेल्टा इक्वल्स टू ट्वाइस हाइपरबोलिक एच डी बाई टू, ये अपन जानते हैं। सो दिस इंप्लाइज एच डी बाई टू इक्वल्स टू, ये नीचे आ जाएगा डेल्टा बाई टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डेल्टा बाई टू, ये अपन जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। अगेन वी नो दैट, हम ये जानते हैं क्या, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस 6 अपॉन 640 3 अपॉन 40 x रेज टू 5 एंड सो ऑन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x. So this hd by 2 equals to sine hyperbolic inverse delta by 2. So this implies, using this formula, so delta by 2, this is your x, minus delta by 2 whole cube upon factor 3 plus 3 upon 40 delta by 2 whole raised to 5 and so on. So this implies डेल्टा बाई 2, और 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस डेल्टा क्यूब अपॉन 8 इंटू 3, दिस इज योर 24 डेल्टा बाई क्यूब प्लस 5 मीन्स 32, और 32 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, 32 इंटू 40 डेल्टा 5 एंड सो ऑन. दिस इज योर एच डी बाई 2. This is your hd by 2. डेल्टा बाई टू का होल क्यूब 6 की फॉर्म में, डेल्टा बाई 2 1 अपॉन 6 है, 1 अपॉन 3 1 अपॉन 6, दिस इज 1 अपॉन 6, दिस इज 1 अपॉन ऑल्सो 6, तो ये हो जाएगा, ये डेल्टा बाई 2 होल क्यूब और 1 अपॉन 6.
दिस इज योर, सो एच डी इक्वल्स टू, नाउ दो का प्रयोग एक में करते हुए, दो का प्रयोग किस में किया हमने, एक में, फर्स्ट में, यूजिंग दिस फर्स्ट में, ये दिस इज योर फर्स्ट और दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, यूजिंग दिस एच डी बाई टू इक्वल टू दिस, सो साइन हाइपरबोलिक 2 का फॉर्म लिखे अपन लोग, सो therefore we can write hd by 2, hd by 2 equals to sin hyperbolic की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, this is your delta by 2 minus 1 upon 6 delta by 2 whole cube plus 3 upon 40 delta by 2 whole 5 and so on. So this is your expression. Now solving this, so therefore d equals to twice cancel हो जाएगा 1 upon h, twice cancel कर देंगे 1 upon h delta minus delta cube by 24 plus 3 upon 640 delta 5 and so on. This is the equation number 3. So therefore d equal to 3, so d of y equal to 1 upon h delta minus delta cube by 24 plus 3 upon 640 delta 5 plus so on. This is the d of y की फॉर्म में, so therefore इसको y से मल्टीप्लाई कर दें, तो d of y means y dash, this is your y dash, 1 upon h delta of y minus 1 upon 24 delta cube y plus 3 upon 640 delta 5y and so on. So this is your equation in terms of y या d, and then the second formula y dash means इसका squaring both side, squaring both side करें तो d square of y equal to 1 upon h square, 1 upon h square and delta square minus 1 upon 12 delta 4 plus 1 upon 19 delta 6 and so on. स्क्वायरिंग करने पर ये टर्म आ जाएगी और फिर y की संक्रिया पे जब हम लगाएंगे तो ये y आ जाएगा, सो therefore using this we get second derivative y double dash equal to 1 upon h square and delta square y minus 1 upon 24 delta 4y plus 1 upon 90 delta 6y and so on. This is has to. So this is your partial central reference operator का differentiation using the sine hyperbolic function. We get this one. We have another identity. This type of identity. Now, prove that, second identity, prove that, बहुत important identity है, d by dx of yx equal to 1 upon h yx plus h minus yx minus h minus 1 upon twice h yx plus 2h minus x minus 2h plus 1 upon 3h yx plus 3h minus yx minus 3h and so on. This condition we have to want to prove this one. So देखिए हमारे पास राइट हैंड पार्ट में देखें e की फॉर्म अगर हम चेंज करें e रेज टू h e रेज टू माइनस h e रेज टू 2h e रेज टू माइनस 2h e रेज टू, क्योंकि अपन जानते हैं we know that yx plus h is converted as e raised to h yx, ये अपन जानते हैं. सो हम क्या करेंगे, राइट हैंड पार्ट से करके हम इसको yx की फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू, देयरफॉर RHS साइड से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, RHS साइड से 1 upon h ब्रैकेट
फर्स्ट पे देखिए इट इज कन्वर्ट e रेज टू x yx माइनस e रेज टू माइनस h yx माइनस 1 अपॉन ट्वाइस h e रेज टू ट्वाइस h yx माइनस e रेज टू माइनस ट्वाइस h yx प्लस 1 अपॉन 3h e रेज टू 3h yx माइनस e रेज टू माइनस 3h yx। ये हमने e में कन्वर्ट कर दिया RHS सेट को। नाउ फर्स्ट टर्म yx फिर ये e स्क्वायर की फॉर्म में e क्यूब एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म एक जगह माइनस की टर्म एक जगह ले लें, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन h e yx प्लस नहीं माइनस की फॉर्म में माइनस 1 अपॉन 2h 2h बाहर आ गया 2 e स्क्वायर yx प्लस 1 अपॉन 3 e क्यूब yx एंड सो माइनस e इनवर्स yx माइनस 1 अपॉन 2 e 2 e माइनस x प्लस 1 अपॉन 3 e माइनस 3 yx माइनस एंड सो ऑन। दिस इज द फॉर्म e की फॉर्म में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। हम जानते हैं ये h की फॉर्म, ये h की जरूरत ही नहीं है यहाँ, ये h नहीं ट्वाइस, ये h नहीं होगा, सिंपल। So this implies this one. So this is equal to 1 upon h. This is equal to 1 upon h. E then half e square plus e cube. फिर इसी तरह से देखिए इनवर्स में e of minus 1, e of minus 2, e of minus 3 and so on. So this is equals to 1 upon h log 1 plus e yx minus log 1 plus e inverse yx. So this is equals to 1 upon h log 1 plus e upon 1 plus e inverse into yx. So this implies this is equals to 1 upon h log of e into yx. So therefore 1 upon h log of e raised to hd into yx. So देखिए कैंसिल हो जाएगा। So this is equals to d of yx equals to d by dx of yx, or this is your LHS point. So this is very important identity. This is very important identity to want to prove this one. So ये बहुत important identity है, इसको यूज करके हमने log में कन्वर्ट कर दिया, log की इनवर्स की फॉर्म में, फिर नीचे log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाया तो ये फॉर्म बन गई, और इसको इस फॉर्म में फिर e इक्वल टू हम जानते हैं e रेज टू एच डी होता है, और ये एच डी से h कैंसिल, जब ये एच डी नीचे आएगा तो h से h कैंसिल, d ऑफ वाई एक्स, और d ऑफ वाई एक्स इज d बाई डी एक्स ऑफ वाई एक्स। तो आपने देखा कि दोनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इसी के साथ ही न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। आप इसको इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फिर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, फिर सेंट्रल डिफरेंस टेबल, और फिर अनइक्वल डिफरेंस टेबल, ये सब आपको बनाने हैं, इन्हीं पे बेस आपको ये काम करना है, और इन्हीं वीडियो को देखते हुए आगे के एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच।